Hello students, welcome to Ganit classes. Today we are going to do figure it out page number 133. We are starting from question 14. The previous question we have done in previous video, you can check those questions. So we are doing number play class 8 Ganit Prakash figure it out question number 14. Students, if you are liking such video, please like, share and subscribe my channel Ganit classes. Now here the question is the product of two consecutive means continuous integers always multiple of 2? Why? So here first question is product of two consecutive integers. So let's start doing. Consecutive integers क्या होते हैं? जो लगातार. Let 1 and 2. So 1 into 2 is 1 into 2 is 2. It's multiple of 2. Yes, it's multiple of 2. So in the question it is asked for product of two consecutive integer always multiple of 2. Yes. और ले लेते हैं next 2 के बाद क्या आता है 3 6. yes again multiple of 2 3 ले लेते हैं 3 के नेक्स्ट क्या होता है 4 3 4 जा 12. yes it's also multiple of 2. 4 into 5 20. yes it's also multiple of 2. 2 10 जा 20. ऐसे ही 5 into 6 30. so we can continue in this way. We have written all these products are multiple of 2. so why we have proved? We have proved by taking example. Okay, so we have proved it that product of two consecutive integer is always a multiple of 2. देखो सारे multiple of 2 आए हैं. Now next he asks, what about product of these consecutive integer? Is it always multiple of 6? क्या multiple of 6 आ रहा है? देखो एक भी केस में यहाँ पे आ रहा है. Here we can see सिर्फ इस केस में आया multiple of 6, इसमें आया और या इसमें आया, always नहीं है. So we can see sometime it is multiple of 6 but not always. Not always, हमेशा नहीं आता है. ठीक है. Now next is it, this we have answered. Why or why not we have answered. What can you say about product of 4 consecutive integer? अब आपको 4 consecutive integer लेने हैं. What is the product of 4? 5 consecutive, 5 भी हम करके देखेंगे. ठीक है. 4 हम करके देखते हैं. प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive integer. आपको 4 लेने हैं लगातार consecutive integers. So let's take 1 2 3 4. So it is 24. Now 2 3 4 and 5. So it is 6 4s are 24 and 5 120. Now 3 4 5 and 6. It is 360. So here you can see we are all getting similarly. We are all getting multiple of 24. ये सारा 24 पे डिवाइड हो रहे हैं ये नंबर. देखो दिस इज 24, दिस इज 24 5 जा, इसको भी 24 से आप डिवाइड कर सकते हो. These all are multiple of 24. ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है. Now next he says product of 5 consecutive integer. Now let's take product of 5 consecutive integers. ये क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स. पहले हमने 2 के देखे, 6 के देखे, 20 और 4 बार देगा और 5 बाई. अब हम 5 इंटीजर ले रहे हैं. 1 2 3 4 5. You can take product 6 4s are 24, 24 5s are 120. अब 2 3 4 5 and 6.
2 3s are 6, 6 4s are 24, 24 5s are 120, and this is 720. And 3 4 5 6 and 7. 3 4s are 12, 12 5s are 60, 60 6 are 360, and 367s are. It is 2520. So here you can see which table is going on. All are multiple of 120. So we are getting multiple of 120. So student, I hope this is clear to you. Let's revise it again because this is something different in this question. In question he says, is the product of two consecutive. पहले हमने two consecutive लिया, हमने दो दो नंबर लिए, इन सब का प्रोडक्ट आ गया multiple of 2. Yes. Then why we have shown by doing. Next he says, what about product of these consecutive integer? Is it always a multiple of 6? तो अब हमने देखना है कि क्या 6 का मल्टीपल आ रहा है. देखो sometime it is coming, sometime it is multiple of 6, क्योंकि दो बार आया था, हमने देखा 6 आया, 12 आया, 30 आया, बट नॉट ऑलवेज. फिर इन्होंने बोला 4 का लेके देखो, 4 का लिखा तो इट इज़ ऑलवेज 24 पे सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं. सो इट्स मल्टीपल ऑफ 24. ऐसे 5 का करके देख लिया. सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश्ड. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इट इज सॉल्व द फॉलोइंग क्रिप्टारिदम्स. क्रिप्टारिदम हमको सॉल्व करके दिखाने हैं. सो लेट्स डू दिस. क्रिप्टारिदम आपको याद है कि यहाँ पे न्यूमरल की जगह पे क्या होते हैं, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स होते हैं. सो फर्स्ट इज ई एफ इंटू ई इज इक्वल टू जी जी जी. हमें ई एफ और जी की वैल्यू निकालनी है. देखो जी 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 मतलब जी इट कैन बी 112 और 220 और 333, क्योंकि ये तीनों नंबर सेम है. ठीक है, कुछ भी आ सकता है. अब हम इनमें से सबसे पहले 112 को ही ट्राई करते हैं. 112 के हम फैक्टर बना लेते हैं. 3 पे जाएगा ये, 3 3s are 9, 3 7s are 21. तो अब 37 इंटू 3 इज इक्वल टू 111. अगर हम इसके साथ मैच करें, हमारा ये डिजिट और ये डिजिट सेम होना चाहिए. सो वी आर गेटिंग हेयर. सो हेयर वी आर कंपेयरिंग विद इट. वी हैव ई इज इक्वल टू 3, एफ इज इक्वल टू 7 एंड जी इज इक्वल टू 1. ये हमारा आंसर आ गया. सो हेयर बच्चा आपको हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा. इट डजेंट हैव एनी अदर मेथड. सो नाउ लेट्स डू सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज W in OW is into 5 is equal to MEOW. ये आपको सॉल्व करना है. ठीक है, आपको सारी वैल्यूज निकालनी है. सो लेट्स डू इट. अब देखो, जब हम 5 से मल्टीप्लाई किसी नंबर को करते हैं, मल्टीप्लाइंग विथ 5 मीन्स एंड्स विथ 0 और 5. एंड किससे होता है, या 0 से होता है या 5 से होता है, जब हम भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. बट अगर हम इसको 0 से एंड कर दें, ठीक है, तो W 0 हो जाएगा. बट यहाँ पे W शुरू में है, तो वी कैन नॉट. सो 0 इज नॉट पॉसिबल वैल्यू. 0 इज नॉट पॉसिबल वैल्यू बिकॉज इट इज़ एट फर्स्ट प्लेस. सो W की वैल्यू क्या हो गई, 5. तो हमें एक वैल्यू मिल गई. वी गॉट 505 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू M हमें नहीं पता, E हमें नहीं पता, O और हमें W की वैल्यू क्या आ गई, 5. ठीक है, अब हम यहाँ पे O की वैल्यू गेसेस करते हैं. 4 O इज इक्वल टू 1. चलो O इज इक्वल टू पहले 0 ही ले लेते हैं. O की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं. तो 5.5 इंटू 5 इज इक्वल टू इट इज़ 2525. तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी, जब हम मैच करेंगे तो ये दो 2 सेम आ रहे हैं, मतलब O और M की वैल्यू सेम आ रही है, तो नॉट पॉसिबल. अब हम O को ले लेते हैं 1. तो 515 मल्टीप्लाई 5. तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 75 2 5 75. नाउ अगेन दीज 2 वैल्यूज आर मैचिंग. These two value to be different. E की वैल्यू 5 नहीं है. ठीक है,
So it's again not possible. Now 4O is equal to 2. So 525 into 5. अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. So it is 265. Again these two are same. We want different digit. So here we are getting all values. So this satisfy our question. So this is our answer. So here 525 into 5 is equal to 2625. So here you have got all answer. So that was our question. WOW into 5 is equal to MEOW. So here you are getting all values. So now let's move to last question of this exercise. Figure it out. So here, which of the following Venn diagram? So here you have been given Venn diagram. Last question, this Venn diagram. You have to check which is correct. See, बच्चे यहाँ पे 3 मल्टीपल्स की बात हो रही है. मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 8 एंड मल्टीपल ऑफ 32. तो पहले हम मल्टीपल लिख लेते हैं. मल्टीपल ऑफ 4 क्या होंगे? 4 का टेबल 4, 8, 12, 16, 16 के बाद 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40. सेकंड किसकी बात हो रही है? मल्टीपल ऑफ, क्योंकि एक बार मल्टीपल लिखेंगे देन वी विल बी एबल टू सी दिस वेन डायग्राम. 8 के मल्टीपल लिख लो सारे. यस, 8 के भी हम थोड़े से मल्टीपल लिख लेते हैं. उसके बाद तीसरा मल्टीपल किसके आ रहे हैं? मल्टीपल ऑफ 32. 32 के भी मल्टीपल लिख लो. 32 1 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 32 3 ज़ा 96 एंड सो ऑन. तो आप ये देख लो, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि 8 के सारे मल्टीपल भी, 8 भी देखो यहाँ पे आ रहा है, देन 16 भी आ रहा है, 24 भी आ रहा है और उसके बाद 32 भी आ रहा है. 8 के सारे मल्टीपल 4 में आ रहे हैं और 32 के मल्टीपल पीछे आ रहे हैं. जैसे 32, ये देखो 32 भी आ रहा है, दोनों में कॉमन, तीनों में कॉमन है. बल्कि ऐसे अगर कंटिन्यू करो ऐसे 64 भी आ रहा है. तो आपको ऐसा तरीका ढूंढना है कि पहले यहाँ पे आए बड़े में 4 के मल्टीपल होने चाहिए, उसके अंदर 8 के मल्टीपल और उसके अंदर 32 के मल्टीपल. 4 के सबसे ज़्यादा है, उसके अंदर 8 के आ रहे हैं और 8 के अंदर किसके आ रहे हैं? 32 के. सो यू हैव टू चेक इन दिस वे. अब देखो चारों वेन डायग्राम में कौन सा है? इसमें ऐसा नहीं है, तीनों डिफरेंट है. इसमें 2 हैं. इसमें अंदर जो है दिस इज मल्टीपल ऑफ 4. हमें अंदर ठीक है 4. उसके बाद सेकंड पे क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 8 और थर्ड पे यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीपल ऑफ 32. जबकि हमें अंदर क्या चाहिए? हमें चाहिए सबसे अंदर 32. यहाँ पे ठीक है मल्टीपल ऑफ 8 और नीचे साइड लास्ट में क्या है? मल्टीपल ऑफ 4. इट मीन्स फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर. So we have completed chapter 5 in this way. If you have any query in chapter 5, you can send me your doubts in chat box. Okay students, I hope you like it. If you have any doubt, you can send. Keep liking and sharing my channel. Okay, that's all for today. Bye bye.